थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में मालदा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं हम। चलिए। ये जो व्यू है ये बहुत लोगों के लिए फेमिलियर हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग कलकत्ता या फिर हावड़ा से बाई ट्रेन मालदा पहुंचते हैं, उन लोगों का ट्रेन कॉलेज के ठीक सामने से गुजर के पहुंचता है डायरेक्ट मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन्स का अच्छा खासा फ्रिक्वेंसी रहता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग दूर से आने वाले हैं उनके लिए ट्रेन जर्नी ही सबसे कन्वीनियंट रहेगा। स्टेशन से अगर आप एक टोटो लेंगे तो विद इन 10 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंपास में। অ্যাডমিশনের দিনেই গার্জেন এবং স্টুডেন্টরা কলেজে এসে তাদের প্রথম যে কোয়ারিজ থাকে সেটা হলো হোস্টেল নিয়ে। হোস্টেল কবে পাবো, হোস্টেলের কন্ডিশন কীরকম, একটা রুমে কতজন থাকে, এইগুলো নিয়ে বিভিন্ন কোয়ারিজ থাকে। তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের অলরেডি একটা ভিডিও বানানো হয়ে গেছে, যেটা এর চ্যানেল মানে রবিবার চ্যানেল ডক্টর উইনারে আপলোডেড আছে। এবং সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমরা আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। फर्स्ट ईयर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही सेपरेट डॉर्मिटरीज में रहते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से हम सबको हॉस्टल अलॉट होता है एंड यहाँ पे पर रूम 2 स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। रूम का एरिया देखा जाए तो 2 स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। बहुत लोगों को रूम डेकोर का शौक रहता है तो वो अपने हिसाब से रूम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। হোস্টেল তো হলো, কিন্তু হোস্টেল পাওয়ার পরে প্রত্যেকের কোয়ারিজ থাকে খাওয়া দাওয়া নিয়ে, যে মালদা মেডিকেল কলেজে ক্যান্টিনটা কীরকম, খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি কীরকম, তাছাড়াও ভেজ নন ভেজ পাওয়া যায় কি, খাবারের প্রাইস কীরকম হবে। চলো ঘুরে আসি ক্যান্টিন থেকে। पहले नंबर पे जो आता है उसको सब लोग प्यार से शैम कैंटीन बुलाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे खाना खाते हैं एंड खाना क्वालिटी वाइज एंड टेस्ट वाइज ठीक ठाक है। खाना क्यूज़ में लेने के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट सिटिंग एरिया है, जहाँ पे लंच एंड डिनर टाइम पे पुराने हिंदी फिल्म्स या फिर CID चलता रहता है। शैम कैंटीन में वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस ही अवेलेबल रहते हैं। प्राइस रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे खाना बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है एंड MBBS स्टूडेंट्स के लिए हमारे प्यारे शैम काकू अपना खुद का डायरी मेंटेन करते हैं, जहाँ पे हम लोग साइन करके अपने मंथली बिल का हिसाब रखते हैं। एंड लास्टली आप देख ही सकते हो कि शैम कैंटीन में खाना खा के बच्चे के चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान आती है। मालदा मेडिकल कॉलेज का सेकंड कैंटीन एकेडमिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है, जिसका नाम सिल्वर नेस्ट है। यहाँ ज़्यादातर प्रोफेसर्स एंड अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स अपना लंच और डिनर करते हैं। वेल अपार्ट फ्रॉम दीज 2 कैंटीन्स हमारे स्नैक्स की भूख को मिटाने के लिए कैंपस में आशीर्वाद के तौर पे मौजूद है बस वन एंड ओनली द मदर डेयरी। তো এবার আসি যে বিষয়টা নিয়ে জুনিয়রদের মধ্যে সবথেকে বেশি কৌতূহল থাকে, অর্থাৎ র্যাগিং। মালদা মেডিকেল কলেজ ইজ এ কমপ্লিটলি র্যাগিং ফ্রি ক্যাম্পাস। এখানে র্যাগিং কিছুই হয় না, এখানে মূলত গ্রুমিং হয়। অ্যান্ড বাই গ্রুমিং আই ওয়ান্ট টু মিন দ্যাট এখানে জুনিয়রদের সাথে সিনিয়রদের মেনলি ইন্টারাকশন হয়। তাদের ইন্টারাকশনটাও দরকার, এই ইন্টারাকশনটা কিছুটা প্রয়োজন। বিকজ তোমরা যারা আমার মতো মা বাবাকে দূরে রেখে আসছো, যারা অনেক দূর থেকে আসছো, তাদের জন্য এখানে সিনিয়র একটা সিউডো গার্জেন হিসাবে কাজ করে। এখানে 5 বছর মালদা মেডিকেল কলেজে থাকার সময় বিভিন্ন রকমের সুবিধা অসুবিধাতে এই সিনিয়ররাই যাদের সঙ্গে বন্ডিং ভালো হবে তারাই তোমাদেরকে প্রতিটা মুহূর্তে হেল্প করবে। তো এই বন্ডিংটা দরকার আছে। সিনিয়ররা এক্সামের আগে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলো সেগুলো এক্সামের জন্য তোমাদের যেগুলো লাগবে সেগুলো মার্ক করে দেয়। বা ধরো তোমাদের কোনো বইয়ের দরকার পড়লে সেগুলো তোমরা সিনিয়রদের থেকে চাইলে বড় করতে পারো। ইভেন দাদারা এতটাই ভালো যে অনেকেরই বিভিন্ন কন্ডিশন থেকে আসে, বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন থেকে, তো দাদারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনিটারি হেল্পও করে থাকে। অ্যান্ড সত্যি দাদাদের সঙ্গে বন্ডিং খুবই ভালো হয়। অ্যান্ড শুধু একাডেমিক দিক থেকে না, কিছুদিন আগে আমাদের একজন ব্যাচমেটকে রাত্রে ট্রমা সেন্টারে হসপিটালাইজ করতে হয়েছিল। তো সেখানে দাদারা বারবার মাঝরাতে এসে তার খবর নেওয়া কেমন আছে দেখায়, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই দাদাদের এক্সাম ছিল, তার সত্ত্বেও দাদারা মাঝরাতে এসে খবর নিত। এইভাবেই দাদারা 24/7 আমাদের হেল্প করে, আমাদের পাশে থাকে। অ্যান্ড তাদের সাথে আরও ভালো সম্পর্ক হয় যখন আমরা তাদের সাথে খেলতে যাই। একইভাবে আমরা ফ্রেশার্সে সব কিছুতেই একসাথে তাদের সাথে ছিলাম, যেটা তোমরা এই চ্যানেলে দেখতে হবে এবং আমাদের আরও একটা চ্যানেল আছে ডক্টর উইনার, সেখানেও দেখতে হবে ভিডিও। তো ওইভাবে তাদের সাথে খুবই সম্পর্ক ভালো হয়, মানে সিনিयर जूनियर इंटरेक्शन मालदा मेडिकल कॉलेज খুবই ভালো, वेरी हेल्दी। अभी आपने सुना जो कि लड़कों के साइड का था, अब हम आते हैं हमारे गर्ल्स साइड में। तो यहाँ पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एडमिशन से लेकर के हॉस्टल अलॉटमेंट तक हर टाइम पे सीनियर्स ने हमारा साथ दिया है। एडमिशन के जितने भी दिन रहे हैं उन्होंने हर टाइप से जितनी भी गाइडेंस की ज़रूरत हुई है उन्होंने वो सब कुछ प्रोवाइड किया है। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी हमारे सीनियर्स
का ही बनाया हुआ एक हॉस्टल कमेटी है जो कि हॉस्टल को अलॉट करती है। और रही बात सीनियर्स के साथ रूम शेयर करने की, जैसे कि मैं आते ही यहाँ पे सीनियर के साथ रूम शेयर कर चुकी हूँ। मेरे को पहले तो लगा था कि सीनियर होंगे वो हमको डांटेंगे, हमेशा रूम में रहेंगे, लाइट जलाएंगे, कुछ भी, हमेशा हर चीज़ में डर लगता था। पर ऐसा बात नहीं है। सीनियर्स के साथ रहने का डिसएडवांटेजेस वैसा कुछ है नहीं। डर लगेगा शुरू में, ऑब्वियसली डर लगेगा, वो बात है, पर धीरे धीरे रहते रहते यू विल फॉल इन लव विद द सीनियर्स एंड द बॉन्डिंग दैट यू विल क्रिएट विद देम, दैट्स गोइंग टू गो फार। क्योंकि बाद में फिर पोस्टिंग के टाइम पे या इंटर्नशिप के टाइम पे जब हमारा वार्ड पोस्टिंग होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे सीनियर्स ही हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ये सेम चीज़ हर चीज़ में एप्लीकेबल है, लाइक वो रूम शेयरिंग हो या फिर एकेडमिक पर्पस हो या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, हर जगह पे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन या बॉन्डिंग वो हमारे लिए हमेशा ही अच्छी रहेगी। अब स्पेशली मैं उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से या बाहर के स्टेट से आ रहे हो। यहाँ पे आके इतना दूर, घर से इतना दूर आके घर को तो याद करोगे ही, याद आएंगे ही, पर बात यह है कि सीनियर्स इतना क्लोजली बॉन्डिंग हो जाएगा जिन लोगों के साथ, वो तुम्हें होमली महसूस कराएंगे। इवन तुम्हारे बैचमेट्स जो यहाँ रहते हैं या दूर रहते हैं, सब मिलजुल के रहोगे हॉस्टल में, मज़ा आएगा। लैंग्वेज इशू भी थोड़ी थोड़ी होती है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ चीज़ें आप अपने आप सीख ही जाते हैं, बार बार सुनते सुनते, एंड फिर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बस एक ही चीज़ बोलना है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज़ की आदत हो जाती है, एंड एडजस्टमेंट करने के लिए तो हम सब तैयार हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करते ही हैं। एट लास्ट यू विल लव दिस प्लेस, यू विल लव MLD MCH। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबके मन में आता है बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज, वो है वहाँ का पेशेंट लोड। मालदा मेडिकल कॉलेज की बात करो तो यहाँ का पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल मालदा टाउन हो, ओल्ड मालदा हो, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एग्जांपल साउथ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद का धुलियान, बहुत जगह से लोग आते हैं। इवन एडजेसेंट स्टेट्स लाइक बिहार, वहाँ के कटिहार से भी पेशेंट्स आते हैं। जब से हम मालदा मेडिकल कॉलेज में आए हैं, हमने फिलहाल फर्स्ट ईयर में देखा है कि क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली चलते हैं। फर्स्ट 9 से 12 थ्योरी एंड उसके बाद 12 से 4 बजे तक प्रैक्टिकल्स रहते हैं 2 स्लॉट्स में। काफ़ी जगहों पे एक दिन पे एक ही प्रैक्टिकल सेशन होता है, पर हमारे यहाँ रेगुलरली 2 डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल सेशन चलता है। क्लास के रिगार्डिंग तुम कुछ बताओ। क्लास में बेसिकली अगर मैं डाइसेक्शन से ही शुरू करूँ, एनाटॉमी प्रैक्टिकल के बारे में, तो अपने कॉलेज में डाइसेक्शन पूरा स्टूडेंट ही करता है। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स दिखा देते हैं कि प्रोफेसर डाइसेक्ट करके दिखाते हैं, स्टूडेंट को बॉडी टच करने नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ पे एकदम पहले से लेकर हम ही खुद डिसेक्शन करते हैं, उससे क्या होता है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। यही है हमारा एनाटॉमी म्यूजियम, जहाँ पे सारे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस होते हैं एंड डिसेक्शन के लिए अलग डिसेक्शन हॉल है। वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वी टुक द कैडावरिक ओथ एंड दस वी आर बाउंड टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ कैडावर, आवर फर्स्ट टीचर। उसके अलावा भी अगर मैं और डिपार्टमेंट की बात करूँ, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब हम यहाँ पे एडमिशन लिया था, आपको पता ही होगा कोलकाता के कॉलेजेस में MCK एनालिस, वहाँ पे बहुत सारे संख्या में फैकल्टी रहते हैं। हमारे यहाँ पे जब हम एडमिशन लिए थे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में बस 2 प्रोफेसर्स थे, बट उससे बोस्ट करने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट, क्योंकि सेमेस्टर के बाद सबसे पहले उसी का कॉपी दिखाया गया था। जब एग्जाम्स पे आएंगे तो तुम पता एग्जाम के रिजल्ट्स कैसे दिखाए जाते हैं। एग्जाम्स का रिजल्ट बेसिकली हर एक एग्जाम के 15 दिन बाद आपको पेपर शो कर दिया जाता है, आपका मार्क्स बता दिया जाता है। उसमें मतलब पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से चेक भी होता है, टाइम टू टाइम हर एक अपडेट रहता है। क्लास भी पूरा रेगुलर हम लोग का फॉलो होता है, जो शेड्यूल जिस टाइम पे है, मतलब कि एग्जाम जब होना है, अपने यहाँ पे फेस्ट भी होता है, फेस्ट जब होना है उसके बाद क्लासेस पूरे रेगुलर चलते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कभी बंक हो रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। टीचर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड स्टूडेंट्स भी बहुत सारे, उस रेस्पेक्ट से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे अचानक पार्ट टेस्ट एंड सरप्राइज टेस्ट भी ले जाते हैं, तो ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि पेरिफेरल कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई का कुछ डाउन हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि जो अपने कॉलेज में NMC की जो गाइडलाइंस है, जैसे EC फॉलो करना, EC एंड उसके बाद फैमिली एडेप्टेशन प्रोग्राम जो है, वो हर एक चीज एडकॉम जो होता है
वो हर एक चीज़ एकदम पर्टिकुलरली फॉलो होता है। बहुत सारे कॉलेज में बस बोल दिया जाता है कि फॉलो हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ पे सही में वो चीज़ फॉलो किया जाता है एक्चुअली। এটাকে বলা হয় এই যে অ্যালকোহল স্ট্রেন থার্মোমিটার দেখাবো। So if I ask you, is this a male kidney or female kidney? प्रैक्टिकल्स की बात हो या फिर पेशेंट एक्सपोजर हो, मालदा मेडिकल कॉलेज में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब चलिए आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर से घुमा के लाते हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहीं पे क्लासेस होते हैं और सामने प्रोफेसर्स का रूम है, उसके बगल में ही रिसर्च लैबोरेटरी। उससे ठीक सामने जाएं तो इधर HOD सर का रूम पड़ता है, इसके बगल में यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम नज़र आता है। अब आप कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 5.5 साल अब बस पढ़ाई एंड पेशेंस से करते रहोगे। एक कॉलेज का कैंपस एंड वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मालदा मेडिकल कॉलेज के गेट से घुसते ही आपको नज़र आएगा बिधान उद्यान, एक बाग जो कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को डेडिकेटेड है। बाग के बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा लगा है एंड बाग को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चलिए अब आते हैं हमारे प्लेग्राउंड में। जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल टूर्नामेंट्स या फिर टग ऑफ वॉर, सब इसी प्लेग्राउंड में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब चलिए लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आई होप कि इतने से आपको कैंपस का एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल ही चुका होगा। तो अब चलिए ऑडिटोरियम की तरफ। यहीं पे हमारे कॉलेज के सारे इवेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स, कॉन्वोकेशन, फेयरवेल एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली फेस्ट होता है। एंड किस स्केल पे होता है यहाँ का फेस्ट वो देख ही सकते हो आप वीडियो में। So this was all about मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो का साथ दिया है तो दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।